So why people want white teeth? Like, is there any difference, yellow teeth, and in terms of bacteria, yeah, in terms of something? No, there is no. It's the individual Or it's a- body. It's naturally growing. Good teeth should be there. But yes, yellow teeth are often seen in the people who are not maintaining it properly. That layer, what I talked about, that gives you the yellow color. सर कुछ टूथपेस्ट में लाइक मैंने देखा है कि लिखा होता है कि 0 से 6 ईयर्स से लाइक दूर रखना है वही. सो व्हाई इज दैट? सी आई टेल, अभी हमने बात की थी ना, टूथ में फ्लोराइड होता है. हाँ. Fluoride, if taken in the big amount, can be dangerous for the health. ठीक है. अब अगर किसी बच्चे ने गलती से जितना एक टूथपेस्ट के पैकेट में देखते हैं ना, वो पूरा किसी ने एक बार में निगल लिया ना, तो दैट कैन बी इंजूरियस, दैट कैन बी हैजार्डस फॉर द लाइफ. Oral health is something we often take for granted, isn't it? एक छोटी सी कैविटी आगे चलकर कितनी बड़ी समस्या बन सकती है. गम डिसीज, ओरल कैंसर, येलो टीथनिंग ना सिर्फ हमारी हेल्थ पर बल्कि हमारी कॉन्फिडेंस पर भी इम्पैक्ट करता है. और कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स, ब्रश कितनी देर करना चाहिए, कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, दिन में दो बार ब्रश करना क्यों जरूरी है. आज हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, प्रैक्टिकल टिप्स, मिथ का सच और डेंटल केयर का एक नया नजरिया. सो स्टे विथ अस क्योंकि ये एपिसोड आपकी स्माइल का गेम चेंजर हो सकता है. To give us expert insights and solution to these problems, we have with us Dr. Ashutosh sir, the Chief Dentist of Dental Quest, with an incredible 16 years of experience. Thank you sir for joining us today. सर डेंटल क्वेस्ट और आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें. See, I am Dr. Asutosh. I graduated in 2008, and after that I started my practice in Dwarka with the vision of giving the best of dentistry to Dwarka. Okay. And in last 16 years, we have grown to be actually the biggest center and NABH accredited center in Dwarka with more than 17,000 people, trusted patient whom we have treated till date. And हमारी टीम भी एक अच्छी बड़ी टीम है, and we have specialist for every other department so that we can give you the best possible treatment and a comprehensive customized treatment for our people in Dwarka and around Dwarka. And our vision is to be best in industry by 2026. तो अभी आपके सेंटर सिर्फ दिल्ली में ही है, राइट? हाँ. You haven't out of Not even Delhi, we are just in Dwarka. our colony, We have only one center, which is the state-of-art center. but you have patients from different. Yes, we get patients from everywhere, and across the country we get the patients, and international patients also. Okay, that's great. And we don't want to dilute the quality and the hospitality what we provide to our patients. That's why we are not interested in any other branch of it or franchisee of it. If at this point of time, what we are thinking to increase the size, increase the capacity at one place, Okay. and facilitate other people to come in Dwarka and provide the treatment to them. We are working upon the जैसे डेंटिस्ट्री बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है ना, we are working upon cutting down the timeline of the patient's treatment. ठीक है, so that will give a bigger boost. So the technology is to have you had everything like जो required है. Yes, we are using almost everything in dentistry which is being talked about and which is proven to give the results in dental treatment, and modalities what are acceptable ethically, we use them. So कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरी ही है. See, major technologies like होता क्या है कि ट्रीटमेंट्स तो ऑलमोस्ट वही है, लाइक स्केलिंग है, क्लीनिंग ऑफ द टीथ, या फिर रूट कैनाल है, या फिर
रिप्लेसमेंट ऑफ द टूथ है, या कैपिंग है, या इम्प्लांट्स है, मोडालिटीज तो वही है, ट्रीटमेंट वही है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? रूट कैनाल अब रोटरी से करते हैं, लेजर असिस्टेड करते हैं, माइक्रोस्कोपिक करते हैं, ठीक है, जिससे कि उनका इम्प्रूवमेंट, जो कन्वेंशनल रूट कैनाल था उसकी एफिशिएंसी 70% थी, तो अब इट इज ऑलमोस्ट 95%। कैपिंग, अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं उनको यूज़ करते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के कैप हैं उनको यूज़ करते हैं, उनको बनाने का तरीका अलग अलग हो जाता है। सो दैट इज़ अगेन अ चेंज। अब उसमें टाइम कितना कम लगता है, पहले कास्टिंग होती थी, मोल्डिंग होती थी, अब कैड कैम से उसको प्रिंटिंग होती कि, सो दैट इज़ अगेन अ चेंज। अब जब इम्प्रेशन लेते थे तो पहले वो एक डॉक्टर कुछ मिक्स करता था और मेजरमेंट लेता था। नाउ वी डू द स्कैनिंग ऑफ इट। अब पहले पुराने ज़माने में वो एक्सरे लेते थे, फिर उसको धुलता था, फिर एक्सरे आता था। अब वो डिजिटल आरबीजी हो गया, वो इमीडिएटली आपने क्लिक किया और स्क्रीन पे आ गया। फुल माउथ एक्सरे भी इसी तरह की चीज़ हो गई। तो modalities I won't say have changed much, but yes, the way of providing them has changed to increase the efficiency of the same treatment. Like our forefather, they were also doing the transportation from one place to other. वो बैलगाड़ी पे थे, उसके पहले हाथी पे थे, उसके बाद कार पे आए, अब सुपरसोनिक्स पे आ रहे हैं। सुपरसोनिक्स, तो ट्रांसपोर्टेशन इज द सेम, with the same way dentistry is the same, modalities are changed, and we have almost everything which is proven in market to be provided and provided in dental crest. सर 16 इयर्स की आपकी अभी तक की जर्नी में कुछ कॉमन पेशेंट्स या फिर कुछ कॉमन डिसीज जो कि इस पे हर एक सेकेंड थर्ड पर्सन को ये प्रॉब्लम तो है ही है। With oral hygiene what we are seeing, देखो एक तो ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन हो रहा है, वो हमारे कल्चरल डेफिसिट में आ चुका। एंड देन एक दूसरा क्या होता है कि मेनी पीपल कम टू मी विथ टूथ एक। आज तक मुझे बहुत कम पेशेंट मिले जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ हल्का फंसता है या फिर हल्की दिक्कत होती है एंड देन ट्रीट इट। वो ऑलरेडी वो वेट करते हैं कि जब तक वो दर्द ना करे तब तक वो बीमारी नहीं। उनको ये बताएं कि दर्द के बाद इलाज ही करना पड़ता है। पर वैसे भी लाइक ओरल हाइजीन या फिर टीथ जो डेंटल डिसीज है उसको लोग सीरियस लेते भी नहीं है। एग्जैक्टली, तब वो पहले उसकी जब स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में उसको वो फिलिंग कर सकते हैं, बहुत ही नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, प्रिवेंटिव प्रोसीजर है, नॉर्मल क्लीनिंग मेंटेन करें वो भी नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, प्रोफेशनली क्लीन कर लें हर एक 6 महीने में, दे वोंट गेट द पारी। अगर स्टार्टिंग के ग्रूव्स में ही फिलिंग कर ली जाए तो डिके नहीं बढ़ेगा, हम उसको छोड़ देते हैं, वो बढ़ के इतना बड़ा हो जाता है कि वो नब्ज के पास चला गया, उसका रूट कैनाल करो, रूट कैनाल के बाद कैप लगाओ। वो हमारे डेंटिस्ट्री में कहते हैं ना कि डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव बट द डिलेज या जितना ज़्यादा वो टाइम बढ़ेगा फिर वो उसका उतना ज़्यादा वो कॉस्टली कॉस्टली होता है। ओके सर, व्हेन टू स्टार्ट ब्रशिंग सेम? द डे यू स्टार्ट टेकिंग समथिंग फ्रॉम द माउथ, ओके, योर ओरल हाइजीन शुड कम इन द पिक्चर। बच्चा जब पहली बार फीड लेता है, फ्रॉम द डे वन it should be cleaned. Oral hygiene standards should be maintained from the day one, and वो हैबिट्स उसी समय से बच्चों में डलनी चाहिए। मोडालिटीज बदल जाएंगी अगेन कि पहले आपने उंगली में सूती कपड़ा डाल दिया, पहले सिर्फ पानी से रिंस कर दिया, हल्का पानी डाल दिया लास्ट में, उसके बाद सूती कपड़े से वाइट कर दिया, उसके बाद फिंगर ब्रश से क्लीन कर दिया, थोड़े बड़े हुए तो बेबी ब्रश यूज़ कर दिया, और बड़े हुए रेगुलर ब्रशिंग कर ली।